بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ڈینیل کا ماتحت مطلوبہ انجیکشن لے آیا تھا۔ پارس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سرنج میں دوا بھری، پھر اسے کوئلی کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ ایسے وقت کوئلی کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ پارس نے کسی قدر مطمئن ہو کر اسے دیکھا، پھر ماتحت سے کہا، معلوم کرو تمہارا ماسٹر ڈینیل کہاں ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹیلی فون کے پاس گیا، پھر یک کے بعد دیگرے کئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ آخر کار ایک نمبر پر رابطہ قائم ہو ہی گیا۔ اس نے کہا، ماسٹر، آپ سے ماسٹر پارس بات کرنا چاہتے ہیں، پلیز ہولڈ آن۔ پارس نے آ کر ریسیور لیا، پھر ماتحت کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ آہستگی سے بولا، میرے دماغ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی بولا، ڈینیل، میرے کمرے کے فرش پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہے۔ یہ بڑی بے تکلفی سے میرے کمرے میں آئی تھی اور اپنی آنکھوں سے مجھے سحر زدہ کرنا چاہتی تھی۔ یقیناً تنویمی عمل کر کے مجھے اپنا معمول بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے زہر سے زیر کر لیا ہے۔ یہ شاید مر جاتی، لیکن میں نے اس کی جان کو بچا لیا ہے۔ جب تک ہوش میں نہیں آئے گی تو دماغی طور پر کمزور رہے گی۔ تم ایسے وقت خیال خوانی کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر سکو گے۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائے گی؟ میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہوش میں نہ آئی تو دوسرا انجیکشن لگاؤں گا۔ کیا تم کہیں مصروف ہو؟ میں تمہارے لیے تمام مصروفیات چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے دماغ میں ماما اور پاپا بھی آتے ہیں تو میں بے چینی محسوس کرتا ہوں۔ سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ میرے دماغ میں رہ کر کیسے کیسے خیالات پڑھ رہے ہوں گے۔ اسی لیے میں مختصر اور ضروری باتیں کر کے سانس روک لیا کرتا ہوں۔ ڈینیل چلا گیا۔ 1 منٹ کے اندر ہی اس کا ایک ماتحت آیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، مسٹر پارس، میں ڈینیل ہوں۔ اب اپنے اس ماتحت کے دماغ میں رہ کر اس دوشیزہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کروں گا۔ تم درست کہتے ہو، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے اندر پہنچ کر وہ خیالات پڑھے جن کا تعلق صرف ہم سے اور ہماری محبوبہ سے ہوتا ہے۔ پارس نے کہا، شکریہ کہ تم میرے دماغ سے چلے گئے ہو، لیکن میرے لیے موجود ہو۔ میرا خیال ہے تم اپنے ماتحت کو کہیں چھپا دو اور وہاں سے اس کے ذریعے اس اجنبی دوشیزہ کی آواز اور لہجہ سنو۔ یہ کسی تیسرے کی موجودگی میں کھل کر بات نہیں کرے گی۔ میں چاہتا ہوں یہ پہلے کی طرح بے تکلفی کا مظاہرہ کرے۔ میں اسے باتوں میں لگا کر ٹیلی پیتھی کے بغیر خود بھی کچھ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے اپنے طور پر معلومات حاصل کریں گے۔ بائی دی وے، تم نے اس کے متعلق اب تک کیا اندازہ لگایا ہے؟ یہ تنویمی عمل کے ذریعے میرے دماغ کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی تھی۔ اگر میں اس کا اسیر ہو جاتا تو شاید یہ مجھے کہیں لے جاتی۔ ہمارا خیال تو سپر ماسٹر کی طرف ہی جاتا ہے۔ شاید یہ اس کی اہم اعلی کار ہے۔ ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو۔ تم خیال خوانی کے ذریعے حقیقت معلوم کر لو گے۔ ڈینیل اپنے ماتحت کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اسی وقت میں ڈینیل کے پاس آیا، اپنے کوڈ ورڈز ادا کیے۔ اس نے مجھے کوئلی کے متعلق بتایا۔ میں نے کہا، میں سونیا کے پاس جا رہا ہوں، میری ضرورت ہو تو وہاں چلے آنا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ پارس اپنے کمرے میں ایک ایزی چیئر پر بیٹھا ہوا ناگواری سے کوئلی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئلی پارس اور نینسی کے درمیان دیوار بن گئی تھی۔ ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ اجنبی دوشیزہ اس پر تنویمی عمل کرنے آئی تھی، لہٰذا اس کے ارادوں کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ وہ ایزی چیئر سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کی نبض تھام کر محسوس کرنے لگا۔ نبض کی رفتار نارمل تھی، وہ ہوش میں آنے ہی والی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگیں۔ پارس اس کے چہرے پر جھک گیا، ایک عاشق کے انداز میں بولا، اے حسن و شباب کی ملکہ، جاگو، آنکھیں کھولو، تم کون ہو؟ یہاں میرے ہوش اڑانے آئی تھی اور خود بے ہوش پڑی ہوئی ہو۔ وہ پوری طرح آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، میں کہاں ہوں اور یہ خوبرو جوان کون ہے؟ اسے فوراً ہی یاد آ گیا کہ وہ پارس کو ٹریپ کرنے آئی تھی، اور جسے پھانسنے آئی تھی اس نے خود اسے پھانس لیا ہے۔ اسے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ اس خوبرو جوان نے اس کی ہتھیلی کی پشت کو چوما تھا۔
फिर ऐसा लगा था जैसे सांप ने डस लिया हो। उसके बाद वो चकरा कर गिर पड़ी थी। इतना याद आते ही वो उठने लगी, मगर उठ ना सकी। सर चकराने लगा। वो हाय कहती हुई फिर चारों शाने चित हो गई। कराहते हुए बोली, आह, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूं। क्या तुम वाकई पारस हो या कोई और बला हो? पारस ने यही कहा। यही सवाल मैंने किया था, तुम कौन हो? मगर तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करने लगी। पारस सहारा देने के लिए उसे थामना चाहता था। वो सहम कर लेटे ही लेटे पीछे हटकर बोली, खबरदार, मुझे हाथ ना लगाना। तुम पारस नहीं हो, कोई जहरीले आदमी हो। मैं गलत जगह आ गई हूं। उस कमीने बदजात ने मुझे अपने मकसद में नाकाम बनाने के लिए यहां का पता बताया था। डैनियल ने पारस के दिमाग में चुपके से कहा, यह टेलीपैथी जानने वाले लॉरेंस डिकोजा को कमीना बदजात कह रही है। इसका नाम कोयली ग्राहम है। पारस ने पूछा, कोयली, डिकोजा तुम्हें किसी मकसद में नाकाम बनाना क्यों चाहता है? वो बोली, अंगूर ना मिलें तो खट्टे मालूम होते हैं। मैं उसके हाथ नहीं आ रही थी। वो जबरन मुझे हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए इंतकामन उसने। वो कहते कहते चौंक गई। फिर बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? तुम डिकोजा को कैसे जानते हो? मैं उसे इतनी अच्छी तरह जानता हूं जितना कि एक दोस्त अपने जिगरी दोस्त को जानता और पहचानता है। उसने कहा था कि तुम बहुत खतरनाक हो, आसानी से काबू में नहीं आओगी, लिहाजा तुम्हें काबू करने के लिए मैंने तुम्हारे अंदर हल्का सा जहर पहुंचा दिया था। वो कराहते हुए आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर से उठ गई। फिर उसका सर चकराने लगा। वो डगमगाती हुई इजी चेयर पर आकर गिर पड़ी। पारस ने कहा, तुम्हारे हुस्न शबाब में शैतानी कशिश है। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए अपने दोस्त डिकोजा को धोखा दे सकता हूं। उसने चौंक कर पारस को देखा, फिर मक्कारी से सोचा, मैं तनवीमी अमल में नाकाम रही, मगर मेरे हुस्न शबाब का जादू चल रहा है। मैं डिकोजा के आलाए कार को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो घूर कर बोली, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम अपने दोस्त को धोखा देकर मेरा साथ दोगे? मैंने बेटे के दिमाग में आकर कहा, इससे कहो कि तुम इसे पारस के पास पहुंचा दोगे, लेकिन यह तवानाई बहाल करने के लिए कुछ खा पी ले। डैनियल इसके लिए खास दाना पानी भेज रहा है। पारस ने कहा, कोयली, मैं तुम्हें पारस के पास पहुंचा दूंगा। जब तक मेरा काम नहीं बनेगा मैं तुम्हें बदन को हाथ लगाने नहीं दूंगी। मुझे मंजूर है, मैं जल्दबाज नहीं हूं। तुम आराम से बैठो, कुछ खा पी कर तवानाई हासिल करो, फिर मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। जब तक पारस कोयली से बातें करता रहा, मैं डैनियल के साथ उसके दिमाग में रहकर तमाम अहम मालूमात हासिल करता रहा। हमें सुपरमास्टर और डिकोजा का मंसूबा मालूम हो गया था। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, टेलीपैथी जानने वाला डिकोजा होटल सी व्यू के 10 नंबर कमरे में है। वहां जाओ और दूर ही से उस पर नजर रखो। जब तक कोई मजबूरी ना हो उससे छेड़छाड़ ना करना। मैं अभी आकर तुम्हें तमाम बातें तफसील से बताऊंगा। मैंने वापस आकर पारस को समझाया कि कोयली को तवानाई बहाल करने के बहाने कुछ खिलाया पिलाया जाए। डैनियल खाने का कुछ सामान कमरे में ले गया। मैं कोयली में रहकर उसे मजीद कमजोरी का एहसास दिला रहा था और उसकी सोच में कह रहा था, मुझे ज़रूर कुछ खाना पीना चाहिए और इस जवान को अपना दीवाना बनाकर पारस तक जल्द पहुंचना चाहिए। मेरे तरगीब देने पर वो खाने लगी। खाने के बाद उसने 1 कप कॉफ़ी पी। उसे फिर नशा होने लगा। उसके सामने दरो दीवार घूमने लगी। वो बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? बार बार नशा तारी हो जाता है। मेरा सर चकरा रहा है। पारस ने उसे इजी चेयर पर से दोनों बाजुओं को थाम कर उठाया, फिर दूसरे कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वो परेशान होकर बिस्तर से उठना चाहती थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए लिटाए रखा। पारस उसे वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। वो मुतमईन होकर लेटी रही। मेरी सोच की लहरें आहिस्ता आहिस्ता उसे थपकने लगीं। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो गहरी नींद में डूब गई। मैंने पारस के पास आकर कहा, कोयली और उसका साथी डिकोजा तुम्हें यहां से अगवा करके सुपर मास्टर के पास पहुंचाने आए हैं। मैं अपनी जिंदगी में खतरात से खेलने के लिए अक्सर उल्टे सीधे इक़दामात करता रहता हूं, लेकिन ये तुम्हारा मामला है। बोलो क्या चाहते हो? कोयली और डिकोजा हमारी चुटकियों में हैं।
तुम किसी वक्त भी उन्हें मसल सकते हो, उन्हें वक्ती तौर पर कामयाब बनाकर सुपर मास्टर तक पहुंच सकते हो। उसने कहा, पापा, मुझे सुपर मास्टर तक पहुंचने का शौक नहीं है, लेकिन अपने भाई तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। मेरे अतराफ जाल बिछाने का मतलब यही है कि सुपर मास्टर हम दोनों भाइयों को कैदी बनाकर आपकी ताकत को बिल्कुल ही तोड़ देना चाहता है। गोया ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, इसमें अहमियत आपकी है। खुदा न खास्ता आपकी ताकत टूटेगी तो हम सब टूट कर रह जाएंगे। मैं दुश्मनों के हाथों अगवा होकर भाई तक पहुंचना चाहता हूं। मुझे यकीन है मैं सुपर मास्टर का तिलिस्म तोड़कर भाई को वापस ले आऊंगा। अब आप अपना फैसला सुनाएं। बाप बेटे का खून एक, ख्याल एक, फिर फैसला कैसे एक नहीं होगा? लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हारे अगवा का मंसूबा कामयाब होने दूंगा। फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? दुश्मनों के पास टेलीपैथी का हथियार है, इसलिए तुम बाप की मदद लेने से इनकार नहीं करोगे। मुझे मंजूर है। शाबाश बेटे, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अभी कोयली से निमटने जा रहा हूं। मैं कोयली के दिमाग में आ गया। वो गहरी नींद में थी। मैंने उसे सोचने पर मजबूर किया। नींद की हालत में जो सोचें होती हैं वो ख्वाब की सूरत में नजर आती हैं। उसने ख्वाब में धुआं धुआं सा माहौल देखा, फिर मेरी आवाज़ सुनी। मैंने कहा, कोयली, तुम्हारी आंखें सो रही हैं, तुम्हारा जिस्म सो रहा है मगर दिमाग जाग रहा है। वो खामोश थी, ख्वाब में खुद को सोते हुए देख रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम सुनती रहोगी और मेरा हुक्म समझकर उस पर अमल करती रहोगी। उसने नींद की हालत में मेरी बात दोहराई। मैं थोड़ी देर तक उसके दिमाग को अपनी आवाज़ और लहजे से मुतासिर करता रहा, उसके हवास पर मुसल्लत होता रहा। जब यकीन हो गया कि वो ट्रांस में आ गई है और पूरी तरह मेरी मामूला बन गई है, तो मैंने कहा, तुम बेदार होने के बाद भूल जाओगी कि पारस जहरीला है और तुम उसके जहर से हमारे जाल में फंस गई थी। वो बोली, मैं भूल जाऊंगी कि पारस जहरीला है और उसके जहर के बाइस मैं तुम लोगों के जाल में फंस गई थी। तुम अपने पहले मंसूबे के मुताबिक पारस को अपनी आंखों से सहरज़दा करोगी, उसे अपने साथ होटल ले जाओगी, वहां से प्रोग्राम के मुताबिक उसे हेलीकॉप्टर में फिर एक तैयारे में सुपर मास्टर के मुल्क तक ले जाओगी। उसने मेरी बात दोहराई। मैंने कहा, तुम गैर शऊरी तौर पर पारस की हिमायत में रहोगी, सुपर मास्टर और दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के इरादों से उसे आगाह करती रहोगी और सुपर मास्टर का एतमाद बहाल रखते हुए दर पर्दा पारस के काम आती रहोगी। उसने फिर मेरी बात दोहराई। मैंने कहा, बेदार होने के बाद तुम्हारा दिमाग का वो खाना मुकफ्फल रहेगा जहाँ चोर ख्यालात रहते हैं। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला पारस से ताल्लुक़ रखने वाले चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकेगा और ना ही तुम पढ़ने दोगी। पारस की हिफाजत के सिलसिले में जितनी अहम बातें हो सकती थीं वो तमाम बातें मैंने कोयली के दिमाग में नक्श करा दी। फिर बेटे के पास आकर कहा, कोयली 2 घंटे बाद तनवीनी नींद से बेदार होगी। अब मैं तुम पर अमल करना चाहता हूँ, आओ और राजी खुशी खुद को मेरा मामूल बनाओ। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई मंसूबा बनाते हैं लेकिन ठीक उसके मुताबिक हालात पेश नहीं आते, क्योंकि तकदीर भी अपना काम दिखाती रहती है। मैंने सोनिया से कहा था वो डिकोजा पर नज़र रखे। वो उस मकसद से सी व्यू होटल गई थी। कोई 15 मिनट के बाद ही वो मारिया को वहां देखकर चौंक गई। वो डिकोजा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई थी, परेशान होकर दूर दूर तक देख रही थी। उस कॉरिडोर में सिर्फ सोनिया दिखाई दे रही थी। उसने पहले कभी पारस की मामा को नहीं देखा था, लेकिन सोनिया ने उसकी तस्वीरें देखी थीं। वो तेजी से चलती हुई करीब आई, फिर सोनिया से बोली, तुमने किसी कदावर खूबरू जवान को देखा है? वो यहाँ आने वाला था। सोनिया ने पूछा, क्या तुम पारस को पूछ रही हो? वो खुश होकर बोली, हाँ हाँ, पारस का पूछ रही हूँ। इसका मतलब है तुम मेरे पारस को जानती हो। तुम्हें ज़रूर मालूम है वो कहाँ है और कब तक यहाँ आने वाला है। प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ। पहले तुम बताओ, होटल के इस कमरे में क्या कर रही हो? पारस ने इसी कमरे में आने के लिए कहा था। वो मेरे दिमाग में आया था, मुझसे कह रहा था रात को किसी वक्त आएगा। सोनिया उस नादान लड़की के हालात को उसकी बातों से समझ रही थी। वो डिकोजा के कमरे से निकल कर आई थी। ये समझने में देर नहीं लगी कि मारिया के दिमाग में पारस नहीं डिकोजा आया होगा और वही पारस बनकर उसे अब तक बेवकूफ़ बना रहा है। उसने पूछा, मारिया,
इस कमरे में जो आदमी है वो क्या कर रहा है? वो हंसते हुए बोली, अब वो भला क्या करेगा? तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। भला आदमी मरने के बाद भी कुछ कर सकता है? सोनिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर उसका बाजू पकड़कर खींचती हुई उस कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, क्या वाकई वो मर चुका है? मगर कैसे? और कैसे? पारस ने दिमाग में आकर कहा था कि जिस तरह मैं उसे खुश करती हूँ इस तरह उसके बंदे को भी खुश करती रहूँ। मैंने वैसा ही किया। पारस को तो वो अच्छा लगता है, लेकिन ये बंदा तो मर ही गया। वो दोनों दरवाज़ा खोल कर अंदर आईं। सोनिया दौड़ती हुई डिकोजा की लाश के पास आई। उसकी नब्ज देखना फजूल था क्योंकि तमाम जिस्म नीला पड़ चुका था। सोनिया ने उसकी जेबों की तलाशी ली, फिर उठकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। डिकोजा के सामान की तलाशी लेते हुए बोली, ये कब से मुर्दा पड़ा है? जब से मैं कमरे में आई हूँ। यही तो पूछ रही हूँ, कब से? क्या तुम घड़ी के मुताबिक वक्त नहीं बता सकती? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, मेरी टीचर ने एक बार वक्त देखना सिखाया था, मैं भूल गई हूँ। क्या यहाँ कोई मिलने वाला या होटल का कोई मुलाजिम आया था? नहीं, मैं यहाँ अकेली बैठी बैठी परेशान हो गई तो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी कि शायद पारस नज़र आ जाए। ये तुम क्या गज़ब कर रही थीं? तुमने ये क्यों ना सोचा कि दरवाज़ा खुलेगा तो कोई इस लाश को देख लेगा? तुमने लंदन में रहकर क्या सीखा है? क्या तुम्हारे मम्मी डैडी ने ये नहीं समझाया कि कोई भी तुम्हारे जहर से मरेगा तो तुम कातिला कहलाओगी, तुम्हें उम्र कैद या सजाए मौत होगी? मम्मी और डैडी ने समझाया है, लेकिन मैं सज़ा के डर से ये कमरा नहीं छोड़ सकती। यहाँ पारस आने वाला है। वो यहाँ नहीं आएगा। तुम झूठ बोलती हो। कौन हो तुम? मैं उसकी माँ हूँ। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसे मालूम हो गया है कि उसका दोस्त तुम्हारे जहर से मर गया है और पुलिस वाले तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। उससे पहले ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। मैं पारस से मिलने के बाद उसके साथ जाऊँगी। मारिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें उसी के पास ले जाने आई हूँ। मैं उसकी माँ हूँ। वो आज आधी रात को दुश्मनों से छुपकर मुझसे मिलने आएगा। मैं कैसे यकीन करूँ? उसे कहो मेरे दिमाग में आकर बोले। सोनिया ने डिकोजा की लाश को देखा, फिर कहा, अब वो दिमाग में आकर नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? पहले तो इसी कमरे में आकर मेरे दिमाग में बोल रहा था। सोनिया ने उसे एक गहरी सांस लेकर देखा, फिर कहा, मेरी गुड़िया, उसे खांसी होने लगी है। जब तक खांसी खत्म नहीं होगी वो दिमाग में नहीं आ सकेगा। तुम बहुत प्यारी हो, समझदार गुड़िया हो। पारस कह रहा था, जैसे ही मैं उसका पैगाम सुनाऊंगी तुम समझ जाओगी और फौरन मेरे साथ चल पड़ोगी। वो सोच में पड़ गई। सोनिया ने कहा, तुम नहीं चलोगी तो मेरा क्या है? मैं तो चली जाऊंगी। पुलिस वाले तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और लोहे के पिंजरे में बंद कर देंगे। फिर ना पारस तुमसे मिलने आ सकेगा और ना ही तुम पिंजरे से कभी निकल पाओगी। मारिया ने डिकोजा की लाश को देखा। ये बात समझ में आ रही थी कि पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाएंगे तो फिर पारस से मिल नहीं सकेगी। वो चलने के लिए राजी हो गई। सोनिया ने रिसीवर उठाकर डैनियल के 2-4 नंबर डायल किए। एक नंबर पर राबिता कायम हो गया। उसने फ्रांसीसी जुबान में कहा, मेरे दिमाग में आओ। उसने रिसीवर रख दिया। मारिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, फौरन यहाँ से चलो। बाहर निकलकर इस मरने वाले की कोई बात ना करना। उसने मारिया के साथ बाहर आकर दरवाजे को बंद किया, फिर लिफ्ट की तरफ जाने लगी। डैनियल ने आकर पूछा, मैडम खैरियत तो है? सोनिया मुख्तसर तौर पर मारिया को पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बताने के बाद बोली, मैं फ़िलहाल इसे अपने बंगले में ले जा रही हूँ। फरहाद से कहो मुझसे बात करे और तुम ये सोचो कि इस जहरीली लड़की को किस तरह जल्द से जल्द पेरिस या लंदन पहुँचाया जा सकता है। डैनियल बोला, मैडम, मारिया ने डिकोजा से पहले एक रईसजादे को भी डसा है। कल के अखबार आज शायद सुर्खियों में ये खबर शाया करेंगे कि एक ही किस्म के जहर से 2 आदमी मारे गए हैं और दोनों की हथेली की पुश्त पर इंसानी दांतों के निशान हैं। सोनिया ने तायद की, हाँ, ये हमारे लिए तशवीश की बात है। मारिया को कोई मासूम नहीं समझेगा। ये बहुत ही नादान है, अपना बचाव नहीं कर सकती। हम इसकी तरह तवज्जो देते रहेंगे तो दुश्मन हमारी यकतरफा मसरूफियत से फ़ायदा उठाएंगे। मैं कोयली और पारस पर तनवीमी अमल करने के बाद सोनिया के पास आया। डैनियल से मालूम हो चुका था कि मारिया ने डिकोजा का काम तमाम कर दिया है। अगरचे उसने बुरा नहीं किया था, हमारी दुनिया से एक टेलीपैथी जानने वाले शैतान को कम कर दिया था। हम भी यही करने वाले थे, लेकिन हम मुनासिब वक्त पर ऐसा करते। अभी ये हमारे मंसूबे के खिलाफ हुआ था। मारिया हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही थी।
میں نے کہا، سونیا، یہ ماریا ہمارے لیے آج ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، یا آئندہ بھی ہمارے بیٹے کی زندگی میں آئے گی، لہٰذا اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسے زیادہ سے زیادہ پیرس پہنچا سکتے ہیں۔ تم نے پارس کی پرورش کی ہے، اسے ہیرے کی طرح تراشا ہے، کیا تم بیٹے کی خاطر ماریا کو ہیرے کی طرح نہیں تراش سکتی؟ ماریا زہریلی ہے، اگر یہ منجالی کی طرح چالاک، تیز ترار اور بہترین فائٹر بن جائے تو آئندہ پارس کے لیے مسئلہ نہیں بنے گی، بلکہ خطرناک مراحل میں اس کے شانہ بشانہ رہے گی۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، ابھی میں پارس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پارس کو مجھ پر چھوڑ دو، ہم کوئلی کو موقع دے رہے ہیں، وہ اسے اغوا کر کے لے جائے گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا دوسرے بیٹے کو بھی سپر ماسٹر کے حوالے کر دو گے؟ تم ایسے کہہ رہی ہو جیسے بیٹا نادان اور بھولا بھالا ہے، وہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنا نہیں جانتا۔ یہ ہم باپ بیٹے کا فیصلہ ہے، وہ پوری احتیاطی تدابیر کے مطابق جا رہا ہے۔ تم دشمنوں کو احمق کیوں سمجھتے ہو؟ کیا وہ تمہاری احتیاطی تدابیر کا توڑ نہیں کر سکتے؟ وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ میری اور تمہاری تمام زندگی جوڑ توڑ میں گزر گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہماری زندگی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دونوں بیٹے خطرات میں کود کر واپس صحیح سلامت آنے کے ہتھ کنڈے اور جوڑ توڑ سیکھ لیں۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک انہیں عملی تجربات سے گزرتے رہنا چاہیے۔ میں تمہاری بات تسلیم کرتی ہوں، مگر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ اگر ہمارے بچے ہماری طرح دنیا میں کوئی گھر نہیں بسائیں گے تو یہ بھی گردش میں ہی رہیں گے۔ ہم نے بارہا انہیں ایک جگہ پر پرسکون زندگی گزروانے کی کوششیں کی ہیں، لیکن دشمنوں نے انہیں بھی کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ فرہاد، ہماری ٹیلی پیتھی کی طاقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ ٹیلی پیتھی انہیں کمزور بناتی رہتی ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس یہ علم نہیں ہوگا تو شاید انہیں پرسکون زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ جب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو کوئی دشمن بھی ان کی جانب رخ نہیں کرے گا۔ سونیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس پہلو کو نظر انداز کر رہی ہو کہ سپر ماسٹر اور ماسک مین جیسے دشمن ہمارا انتقام ہماری اولاد سے لیں گے۔ ایسے ہی برے وقت کے لیے ہم نے اپنے دونوں بیٹوں کو فولاد بنایا ہے۔ یہ ٹرانسفارمر مشین کا جھگڑا ختم ہو جائے گا تو ہم اعلان کر دیں گے کہ فرہاد اور اس کی فیملی کے تمام ممبران سیدھی سادھی پرامن شہریوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئندہ کوئی ہم سے چھیڑ نہ کرے، ہم بھی کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ میں بھی ایسے ہی خواب دیکھتا ہوں، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہمارے مقابلے کا کوئی دولت مند نہیں ہے، لیکن ہم دنیا جہان کی دولت دے کر بھی اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں خرید سکیں گے۔ مایوسی گناہ ہے۔ جب پارس یہاں سے جا رہا ہے تو میں بھی ماریا کو لے کر پیرس جاؤں گی۔ پاکستان، فرانس، انگلینڈ اور امریکہ میں زمینیں خریدوں گی۔ تمہارے خاندان کے تمام افراد اور تمہارے جانباز ساتھیوں کے لیے آرام دہ بنگلے تعمیر کرواؤں گی۔ اس دوران ماریا کی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال رکھوں گی۔ تم کوشش کرو ٹرانسفارمر مشین کا معاملہ جلد سے جلد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہم ایک بار پھر پرسکون گھریلو زندگی گزارنے کا راستہ اختیار کریں گے۔ ہمیں راحت و سکون پہنچانے والے پروردگار نے چاہا تو ہم اپنے نیک ارادوں میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ویسے تم صرف ماریا کو نہیں، فرزانہ کو بھی ضروری ٹریننگ دو گی، اسے بھی تمہارے پاس پہنچایا جائے گا۔ ڈینیل نے آ کر کہا، میڈم، میں یہاں کے ایک پائلٹ کو خالی طیارے کے ساتھ اغوا کر سکتا ہوں، کیا آپ ایسے طیارے میں ماریا کو بھیجنا چاہیں گی؟ میں خود بھی اسی طیارے میں جاؤں گی، تم انتظامات کرو، لیکن ہم اغوا کیا ہوا طیارہ اور اس کے پائلٹ کو پیرس لے جا کر حکومت فرانس کو بدنام نہیں کریں گے۔ تم اس پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جما کر ہمیں بیروت تک لے جاؤ گے، وہاں ہمارے لیے بابا صاحب کے ادارے سے پرائیویٹ طیارہ آ جائے گا۔ فرہاد، تم ڈینیل سے وقت کا تعین کر کے جناب شیخ صاحب سے کہہ دو، وہ ہمارے لیے طیارہ روانہ کر دیں گے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے اور ڈینیل نے وقت کا تعین کر لیا۔ اصل مسئلہ ماریا بنی ہوئی تھی۔ سونیا نے کہا، فرہاد، یہ لڑکی پارس سے ملے بغیر نہیں جائے گی، اور پارس کسی حالت میں اس سے ملنے نہیں آ سکے گا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، تم پارس بن کر اس کے دماغ میں بولو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ پارس کب سے لوگوں کے دماغ میں بولنے لگا ہے؟ سونیا نے مجھے بتایا کہ کس طرح ڈیکوزا نے پارس بن کر ماریا کے دماغ میں آ کر یقین دلایا تھا کہ اب پارس بھی خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کرنے لگا ہے۔ جب ڈیکوزا مر گیا تو سونیا نے ماریا کو سمجھایا کہ ابھی پارس کو کھانسی ہو رہی ہے، وہ خیال خوانی کے ذریعے بول نہیں سکے گا۔ میں نے سارا معاملہ سمجھنے کے بعد ماریا کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا
वो सांस रोकने वाली थी। मैंने कहा, मैं पारस बोल रहा हूँ, मेरी खांसी खत्म हो गई है। पहले तो वो खुश हुई, फिर नाराज होकर बोली, अब मेरा ख्याल आया है तुम्हें। जानते हो तुम्हारे लिए कहाँ कहाँ भटक रही हूँ और कितनी मुसीबतें उठा रही हूँ। मारिया, ज़रा अक्ल से सोचो, अगर तुम मुझे मदहोश करके होटल में छोड़कर ना जाती, अपने वालिदैन के साथ रहती और मुझसे भी मुलाकात करती रहती, तो यूं तुम पर मुसीबतें ना आती। मुझे इल्ज़ाम ना दो। तुमने कहा था जब तक मैं इल्म हुनर सीख कर इस दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझूंगी, उस वक्त तक तुम मुझे खुद से दूर रखोगे। मैंने अपनी और तुम्हारी भलाई के लिए ये बात समझाई थी। तुम खुद देख रही हो, इस दुनिया को ना समझने और लोगों के फरेब में आते रहने से तुम्हें भी परेशानी होती है और तुम्हारे जरिए दुश्मन हमारा पता भी मालूम कर लेते हैं। मैं जहां छुपा हुआ था, दुश्मन वहां पहुंच गए। अब मैं वहां से भागकर पेरिस जा रहा हूं। ठहर जाओ पारस, अकेले ना जाओ, मुझे यहां तन्हा ना छोड़ो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं भी एक तैयारे में सफ़र कर रहा हूं, तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। आऊँगा तो दुश्मन फिर घेर लेंगे। मैंने अपनी सोनिया मामा से कह दिया है, वो आज आधी रात को चुपचाप तुम्हें एक हवाई जहाज़ में बिठाकर पेरिस ले आएंगी। तुम वहाँ मिलोगे ना? पहले वहाँ आ जाओ, जब मैं देखूंगा कि दुश्मन मेरा पीछा नहीं कर रहे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो सोनिया के साथ जाने पर राज़ी हो गई। जब मैंने उसे यकीन दिलाया कि रात को किसी वक्त पारस ख्याल ख्वानी के ज़रिए उससे बात करेगा, बड़ी मुश्किल थी। पारस की ज़िंदगी में दो बचगाना जहन रखने वाली लड़कियां आकर हम सबको खासा परेशान कर रही थीं। मारिया से फिर भी तवक्को थी कि वो सोनिया के साए में रहकर चालाक बन जाएगी। जोजो से क़यामत तक इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो बाबा साहब के इदारे में डमी पारस के साथ हंसती बोलती रहती थी। वो उसे सचमुच अपना पारस समझती थी। हमें इत्मीनान था, वो इतनी मासूम थी कि डमी गुनाहगार नहीं बन सकता था। हम ये नुस्खा मारिया पर नहीं आजमा सकते थे। उसे बहलाने के लिए पारस की डमी को उसके साथ लगा देते तो चंद घंटों में हमें डमी की लाश मिलती। उसका जहर सिर्फ पारस ही बर्दाश्त कर सकता था। अब देखना यह था कि सोनिया किस तरह खुद को उसके जहर से महफूज रखते हुए उसे पारस के शायाने शान जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाएगी। मैंने कोयली पर तनवीमी अमल करके उसे 2 घंटे बाद बेदार होने के लिए कहा था। पारस पर भी अमल किया था। उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी थी कि वो तनवीमी अमल का बज़ाहिर असर लेगा, किसी भी आमिल को खुश फहमी में मुब्तला करेगा, मगर बातिन में ज़हनी तौर पर नॉर्मल रहेगा। इसी तरह किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने चोर ख्यालात पढ़ने नहीं देगा। वो भी तनवीमी नींद सो रहा था। कोयली से आधा घंटा पहले बेदार हो गया। जब कोयली बेदार होने लगी तो मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसे उस पोजीशन में ले आया जिसमें वो पारस के जहर के बाइस बेहोश हो गई थी। जब मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो पारस उसके सामने घुटने टेक कर उसकी हथेली की पुश्त को चूम रहा था। फिर वो उठकर बोला, तुम्हारी आंखों में बला की कशिश है, जी चाहता है उनमें मैं डूब जाऊं। वो उसकी गर्दन में बाहों का हार पहनाते हुए बोली, डूब जाओ, मैं तुम्हें डबोने आई हूं, बस इसी तरह मेरी आंखों में देखते रहो। पारस यूं देखने लगा जैसे होशो हवास से बेगाना हो गया हो, सारी दुनिया को भूल चुका हो और उसे उन सहरज़दा करने वाली आंखों के सिवा कुछ और नजर ना आ रहा हो। वो हाकमाना अंदाज में बोली, तुम सारी दुनिया को भूल चुके हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम सिर्फ मेरी आंखों को देख रहे हो, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हो। वो बोला, मैं सारी दुनिया को भूल चुका हूं, मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। तुम अपने वालिदैन और अपनी महबूबाओं को भूल जाओगे, सिर्फ मुझे याद रखोगे। मैं अपने वालिदैन और महबूबाओं को भूल जाऊंगा, सिर्फ तुम्हें याद रखूंगा। मेरी हर बात को पत्थर की लकीर समझकर याद रखोगे और बेचूंचरा मेरे हर हुक्म की तामील करते रहोगे। वो उसकी हर बात दोहराता जा रहा था। कोयली को रफ्ता रफ्ता यकीन हो गया कि वो उसका मामूल और ताबेदार बन चुका है। वो बोली, तुम इसी तरह यहाँ खड़े रहोगे, अपनी जगह से ज़रा भी हरकत नहीं करोगे। कोयली ने उससे अलग होकर ज़रा पीछे हटकर देखा। वो अपनी जगह साकित हो गया था, उसके हुक्म की तामील करते हुए पत्थर बन गया था। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई, फिर उसे देखते हुए टेलीफोन के पास आई। रिसीवर उठाकर डिकोजा के होटल के नंबर डायल किए। राबिता कायम होने पर किसी ने पूछा, तुम कौन हो और कमरा नंबर 10 के मुसाफिर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है?
मैं इस होटल का मैनेजर तुमसे सवाल कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे होटल में फ़ोन करने वालों से सवालात किए जाते हैं? सॉरी मैडम, ये हालात का तकाजा है। कैसे हालात? तुम कमरा नंबर 10 से राबता क्यों नहीं कराना चाहते? इसलिए कि वहाँ पुलिस वाले हैं। उस कमरे का मुसाफिर मुर्दा पाया गया है, उसकी मौत जहर से हुई है। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।